Hello, dear students. How are you? I hope all of you fine. पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था अर्थिंग के बारे में. What is earthing? Okay, and importance of earthing, uses and types of earthing and their diagrams. Okay, today we will learn here about electromagnetism. Okay, today we will learn here about electromagnetism. Okay, basically, what is the meaning of electromagnetism? Okay, what is the meaning of electromagnetism? Okay, I break electromagnetism into two parts. First one is electro, second one is magnetism. Okay, so it means electromagnetism, it is the study of electricity and magnetic. Okay, or it is the study of electricity and magnetic. Okay, and how will we relate the electricity and magnet? Okay, basically, what is the meaning of electromagnetism? Okay, basically it is the study of electricity and magnetic. Okay, magnetism बोल सकते हो. Okay, how will we generate magnetic effect through the help of current in a conductor? Okay, here we learn how will we generate magnetic field. Okay, in a current carrying conductor. Current carrying conductor means ऐसा कोई हमारे पास वायर हो जिसमें करंट फ्लो हो सके, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम. बट हेयर हम लोग क्या बोले, कॉपर वायर को लेंगे. तो electromagnetic force, अब you see this electromagnetic force occurs between electric charge. Okay, electromagnetic force that occurs b slash means between. Okay, between electrically charged particles. Okay, electromagnetic force that occurs between electrically charged particles. Okay, between electric charged particles. Okay, then what is electromagnetism? Okay, you see this one. Electromagnetism is a process where magnetic field is created by introducing the current in the conductor. When a conductor is electrically charged, it generates magnetic lines of force of conductor. What is the meaning of electromagnetism? For better way, you see this picture. Okay, suppose this is the combination of cell. Combination of cell is known as battery. Okay, in previous classes हमने सीखा था current always flow from positive terminal to negative terminal. So what is happen? This one is positive terminal. Okay, and this one is negative. ओके, बिगर जो ये बिगर है ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड स्मॉलर नोन एज निगेटिव. ओके, देन व्हाट इज हैपन, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल. सपोज व्हाट इज करंट हेयर, करंट इज आई. ओके, व्हाट इज करंट हेयर, करंट इज आई. व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, दिस सपोज ए दिस वायर, जो ये हमारे पास वायर है, ठीक है, इट इज ए करंट carrying conductor. Okay, when current flowing through this wire, then what is happen? Here you see, when current flowing through this wire and this given, जो हमारे पास ये दिया हुआ है ये कंडक्टर है, एंड दिस वन इज, here you see this one is plane of paper. और प्लेन ऑफ पेपर कैसा, इट इज प्लेस्ड इन हॉरिजेंटली. ओके,
ये यहाँ पे क्या है, इसको हमने प्लेन ऑफ पेपर पे, जो हमारा प्लेन ऑफ पेपर के बिल्कुल ऐसे सेट करके, ये जो हमारा कंडक्टर है, कॉपर वायर है, ये इसके मिडिल से पास होता हुआ जा रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई. Then what is happen? Okay, when current flowing through this conductor, okay, when current flowing through this conductor, अब हम यहाँ पे, तो दैट टाइम ये प्रोड्यूस करेगा ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, when current flowing in a this conductor x and y. Okay, when current flowing through this conductor, it produce magnetic field. Okay, suppose this is a plane of paper. Okay, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, you see this one is a compass. ये क्या है, कंपास है. क्या है ये, कंपास है. ओके, दिस वन इज कंपास. देन व्हाट इज हैपन, जैसे ही हम कंपास को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाएंगे तो कंपास हमारा डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देगा. ओके, दैट टाइम कंपास शो सम डिफ्लेक्शन. ओके, then how it is possible? Okay, because when current flowing in this conductor, it produce magnetic field. Okay, when current flowing in this conductor, it produce magnetic field. when compass, जैसे हम इसके पास लाते हैं, कंपास हमारा डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है. it shows that इसके अराउंड उसके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट के थ्रू कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ये. ठीक है, ये हम यहाँ पे इसकी स्टडी कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे ये देखो, हमने पिछली क्लासेस में सीखा था, हमारे पास कोई मैग्नेट है. सपोज दिस इज ए, हमारे पास कोई मैग्नेट है. ओके, ये दिस इज द मैग्नेट. ओके, मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंड साउथ पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस. ओके, हियर यू सी ए मैग्नेट हैव टू पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगर हम किसी भी मैग्नेट को ब्रेक कर दे इनटू डिफरेंट पार्ट, ओके, ईच पार्ट ऑफ दिस मैग्नेट हैव टू पोल. ओके, ईच पार्ट ऑफ दिस मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हियर यू सी, जैसे ही हमने यहाँ पे मैग्नेट लिया, ओके, दिस वन इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. अब ये हमारे पास एक कंपास है. ओके, कंपास है, तो हम क्या करेंगे, कंपास में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को डिस्कस करेंगे. ओके, हियर आई विल डिस्कस अबाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, जैसे ही हम कंपास को इस मैग्नेट के पास लाते हैं, देन व्हाट इज हैपन, यू सी हियर, यू सी नॉर्थ पोल अगर हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. ठीक है, जैसे ही हम इस कंपास को इसके पास लाएंगे, देन नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास चला जाएगा एंड नॉर्थ पोल अपोजिट हो जाएगा साउथ पोल के. तो सिमिलरली ये कंपास इस तरीके से रोटेट होता चला जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. एंड हियर उसी साउथ पोल के नियर में, ठीक है, कौन सा मतलब कंपास का कौन सा डायरेक्शन होगा, तो साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल, नॉर्थ साइड होगा. अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ साइड होगा किसका, कंपास का. ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग. ओके, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे पास डायरेक्शन है, सपोज करो दिस इज ये सपोज करो हमारे पास एक वन मैग्नेट है और दिस वन इज अनदर मैग्नेट. You see this is another magnet. Okay, this one have north pole, this magnet have north pole,
this one is north pole, this one is south pole, and this one is north pole, this one is south pole. Then what is happen? Here you see north pole मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इसमें होगा. ओके, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगा. ओके, बट इनसाइड द मैग्नेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बट आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो लाइक दिस, सॉरी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये नेवर कट टू ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. ओके, यहाँ पे क्लियर नहीं है, ठीक है, बट इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती हैं. अगर इफ़ हमारे पास अगर दो मैग्नेट हैं तो जो दो मैग्नेट हैं किस तरह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस व्हेन टू मैग्नेट समटाइम अट्रैक्ट एंड समटाइम रिपेल? ओके, इसके पीछे रीजन क्या है, हम उस रीजन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में. तो यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, ओके, यू सी दिस मैग्नेट, ओके, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती हैं. इन्हें मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनती है. किस तरीके से? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनती है, ऐसे, ठीक है, लाइक दिस वन. इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है. सिमिलर वे हियर, हियर यू सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम आउटसाइड मैग्नेट की बात करें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द मैग्नेट, देन your answer will be north pole to south pole. But if question asked like this, what is the direction of magnetic field, magnetic lines inside the magnet? What is the direction of magnetic lines inside the magnet? Then your answer क्या होगा? south pole to north pole. Okay, first question, what is the direction of magnetic lines outside the magnet? Okay, what is the direction? I am asking about I am discussing about direction of magnetic field. Okay, then direction of magnetic field outside the magnet, north pole to south pole. Okay, but inside the magnet, okay, you see this one, it make close path na. Then you see outside the magnet north pole to south pole and इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो आप लोग इसको याद रखोगे लाइक दिस वन. ओके, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ओके, एंड हियर यू सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, एंड अनदर थिंग यू रिमेंबर दिस वन, ए मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ओके, magnetic field have direction and magnitude. ओके, आप लोग इस समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वन डायरेक्शनल है या ओनली दिस वन है ओनली डायरेक्शन, एंड क्या ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है? तो आपका आंसर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये बोथ डायरेक्शन मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे दोनों पे डिपेंड करता है. ओके, तो अब यहाँ पे हमने देखा ये जो पिक्चर है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमारे पास ये बार मैग्नेट है. ठीक है, हम बार मैग्नेट के थ्रू हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट थिंग यू सी, जो चीज़ अभी मैंने समझाई, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट is north pole to south pole. Okay, direction of magnetic field lines outside the magnet is north pole to south pole. But what is the direction of magnetic field line inside the magnet? Okay, inside the magnet, direction of magnetic field lines from south pole to north pole. Okay, from north pole to south pole to north pole. Okay, and here you see, जैसे कि हमने दिखाया
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और क्लोज करो, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखिए। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से क्लोज करो बनाती हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, बट गिवन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये है और ये एक दूसरे कभी भी कट नहीं करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक field is shown by the degree of closeness by the field lines. Okay, what is the meaning of this one? Suppose करो अगर हमारे पास ये मैग्नेट है, सपोज करो ये दिस इज द मैग्नेट। ओके, ये हमारे पास मैग्नेट है। ओके, देन व्हाट इज हैपन हियर? देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे ही मैग्नेट से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास ये वीक होता जाएगा। ओके, जैसे ही हम मैग्नेट से दूर जाएंगे तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो वीक होता जाएगा, कमज़ोर होता जाएगा। तो ये यही सेंटेंस हमारा यही कह रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बाय द फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस मैक्सिमम होंगे, फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द मैग्नेट मैक्सिमम होंगे, बट जैसे ही हम मैग्नेट से थोड़ा दूर जाएंगे तो फील्ड लाइंस उसी हिसाब से घटती जाती हैं। तो ये अगर फील्ड लाइंस घट रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट भी वीक हो रहा है। ओके, अनदर पॉइंट इज टू नो टू फील्ड लाइंस और फाउंड क्रॉस ईच अदर। ओके, कभी भी मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ओके, आप लोग ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। ठीक है, अब तक हमने मैग्नेट कितनी प्रॉपर्टी देखी? ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। एंड डायरेक्शन ऑफ magnetic lines inside the magnet south pole to north pole. Magnetic lines are में close curve. and another one relative strength of magnetic field lines, जैसे कि हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, मैग्नेटिक जो लाइन्स है वो घटती जाती हैं। and another ones to no two magnetic field lines are found to cross each other. कभी भी दो मैग्नेटिक लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ओके, अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।